اب میں دعوت اسٹیج دے رہا ہوں جناب سید ارشد اعظمی صاحب، سیاسی و سماجی شخصیت، القرآن انسٹیٹیوٹ کے اہم رکن اور مختلف اداروں کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے آپ کو ان چیزوں سے وابستہ رکھا ہے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آئیں اور ان طالبات کے سامنے اپنی قیمتی باتوں کو رکھیں۔ بہن اپنے پکڑ لو یار، بند کر دو۔ ارے یار سکتی ہے اب بھی ساری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی عزیز القرآن انسٹیٹیوٹ کے مینیجر جناب قمر عالم نقوی صاحب، AMP کے اہم رکن جناب فیصل صاحب، اور جن استاد سے آپ لوگوں نے علم حاصل کی ہے یہاں پہ موجود ہیں علماء کرام ہمارے، میں مبارکباد پیش کروں گا آپ لوگوں کو کہ دنیا بھی اس جدوجہد میں رہتے ہوئے آپ نے دین کا علم سیکھنے کے لیے جو اپنا وقت فارغ کیا 2 سال کا، اور جیسا کہ مجھے مولانا قمر عالم نقوی صاحب نے بتایا کہ ماشاءاللہ 22 بہنیں ہماری اور بیٹیاں عالمیت کا ڈپلومہ کورس حاصل کر چکی ہیں، یہ بڑے خوشی کا مقام ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے دینی تقریر کروں، میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے، آپ کا علم ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ بہرکیف جو ابھی ہمارے مولانا نے تقریر کی ہے، بڑی اہم بات جو ذکر کی ہے انہوں نے کہ علم کے حوالے سے قرآن کو سیکھنا اور سکھانا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اس کو اعلیٰ مقام دے دیا۔ جو شخص قرآن کو سیکھے اور سکھائے، دونوں کو ایک ٹاپ لیول دیا ہے، کیونکہ قرآن ایک اتنی اہم کتاب جو ہمارے بیچ میں اتاری گئی، جس کی اہمیت جو ہونی چاہیے تھی ہمارے دلوں میں وہ ہے نہیں۔ اس لیے آج جو ہم لوگوں نے کچھ دن پہلے تجوید کا ایک کورس کیا، ہمارے مہانگر میں کلاسز چلتا ہے شاداب کالونی میں، تو یقین کیجئے کہ یہ تو بچیاں ہیں اور ابھی علم حاصل کر رہی ہیں، اس میں کچھ انٹرمیڈیٹ کی ہیں، کچھ گریجویٹ ہیں، کچھ ہے، اس میں سائنٹسٹ تھے، اس میں ڈاکٹرز تھے، اس میں بینک مینیجرز تھے، اس میں ایکس منسٹر بھی تھے، اس میں ججز بھی تھے۔ اور جب قرآن کے حوالے سے سرچ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کا جو ہے نہ تجوید صحیح ہے، نہ مخرج صحیح ہے، نہ سورہ فاتحہ صحیح ہے، نہ سورہ اخلاص صحیح ہے، الفاظ بھی صحیح نکال نہیں پا رہے۔ تو دنیاوی علم تو لیا، لیکن قرآن کو مشکل سمجھ کر اس پر نظر ثانی نہیں کی۔ لیکن جب سامنے آئی بات تو ان لوگوں نے اپنے آپ کے اندر جو شرمندگی محسوس کی اور جو پھر احساسات ان کے اندر جاگے کہ ہم نے اب تک کیا کیا، اور ان کی عمریں میں بتاؤں تو کسی کی 55 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 65 سال، کسی کی 70 سال، تو ساری عمر گزر گئی اور قرآن کے حوالے سے بگ زیرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو وہاں تو سب ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ میرے جیسا سیاسی سماجی ہو، چاہے وہ علماء اکرام ہو۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کو اللہ دیکھے گا کہ جو عمل کیے ہیں، چاہے وہ عالم بنا ہو، چاہے وہ سیاسی بنا ہو، چاہے وہ سماجی بنا ہو، اس کی نیت کیا تھی۔ تو ہم نے بہت خامیاں ہمارے اندر، ہمارے سماج کے اندر جو ہیں
छोटी छोटी बातें समझ में आई। अब कुरान आसान कैसे है, जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि 6 अल्फाज जो हैं, हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु, ये कुरान में तकरीबन 1300 बार रिपीट हो रहे हैं। यानी कि बहुत मुश्किल नहीं है। हमने 6 वर्ड याद किया और कुरान के 1300 वर्ड याद हो गए। अब वो जहाँ जहाँ आएंगे हमें समझ में आ जाएगा कि क्या कहा जा रहा है। ऐसे ही पूरी तरतीब है जो आगे का निसाब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ को फैलाने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से ख़वातीन जो माँ बनेंगी कभी, और ये माँ के गोद से ही जो मदरसा शुरू होगा, वो एक, मैं समझता हूँ, मुआशरा बनाता है। अगर एक घर का बच्चा अगर पढ़ जाता है तो वो एक शख्सियत बनता है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर एक ख़वातीन अगर कोई इल्म हासिल कर लेती है तो वो एक मुआशरा बनाती है, वो एक पूरा घराना बनाती है, ख़ानदान बनाती है। तो बहुत जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर भी आयद हैं। अगर आपने इल्म सीख लिया है तो अब उस इल्म से दूसरे मुस्तफ़ीज़ नहीं हुए तो इसकी भी पूछ है, क्योंकि आलिम तो एक हदीस का भी होता है। अगर उसको एक हदीस पता है तो वो दूसरों तक पहुंचाना है। नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा गया है, नमाज कायम करने के लिए कहा गया है। तो जो लोग सिर्फ नमाज पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब क्या है? अमल अधूरा है, नमाज को कायम करना है। आप खुद नमाज पढ़ रहे हैं तो आपने बच्चों को नमाज पढ़ाएं। तो ये छोटे छोटे मसाइल जो आप लोगों ने सीखे हैं, मैं समझता हूँ कि अपने बच्चों को, और बिल्कुल अच्छी बात कही है कि उन्होंने कि अपने बच्चों को आप बड़े से बड़े स्कूल में दाखिल कराइए। देखिए, स्कूल, लेटेस्ट स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल करिए। स्कूल तरबियत की जगह नहीं है, स्कूल जो है एजुकेशन लेने की जगह है। तरबियत आपको करना है, तरबियत माँ की गोद करेगी। हम स्कूल को जिम्मेदार नहीं मानते। अगर हमारा बच्चा गलत हो रहा है तो हमारी तरबियत गलत है। मैं अपने घर अपने बच्चे से बता रहा हूँ कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन जो है शहर में तलाश करते रहे आज से 15 साल पहले। तो स्मार्ट क्लासेस कहाँ हैं भाई, उसको देखा जाए तो जा कर के अमौसी एयरपोर्ट के पास मिलेनियम स्कूल मिला, तो वहाँ पे हमने एडमिशन कराया अपने बेटे का। हमने कहा, मुझे बड़ा भरोसा था कि बच्चे को हमने जो घर में जो तरबियत मिली है, लेकिन जब उसने बताई बात आकर के घर में कि अब्बू क्लास में जो बच्चे हैं, कोई बच्चे ड्रग्स भी लेते हैं और कोई बच्चे जो हैं शराब पीते हैं अपने घरों में, ये आम चीज़ है उनके घरों में। हम उन लोगों के बीच में हैं, इस बात को समझ लीजिएगा। उस बच्चे ने मुझे रिपोर्ट की और उसके अंदर एक नफरत भी पैदा हुई। तो हमने जो एजुकेट किया अपने बच्चे को, हमने कहा नहीं बेटा, ये बड़े अच्छी जगह तुम पहुंचे हो और तुम उन्हें तरबियत दो, तुम उन्हें बताओ ये गलत है ये सही है। ये तो बड़ा अच्छा मौका मिल गया है तुम्हें, और ख़ास तौर से गैर मुस्लिमों के साथ अच्छे अखलाक पेश करो, ताकि वो समझे कि हाँ ये सलमान है, ये मुसलमान है, जो ये बड़ा अच्छा है। तो उसने पूरी तालीम हासिल की वहाँ से, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हमने देखा कि मतलब वो जो घर से तरबियत मिली, घर से तरगीब मिली, माँ की गोद से तरबियत मिली, तो आज वो बच्चा हमारा जो है, हैदराबाद से फ़ोन आया था एक साहब का कि एक एथीस्ट लखनऊ में जा रहे हैं, ज़रा उसको अपने बच्चे से कांटेक्ट करा दीजिए उसका, क्योंकि वो जवाब वही दे सकता है, क्योंकि उसने दुनियावी की तालीम का वो मयार और दुनिया का वो वक़ार और दुनिया का वो लेवल सर्च करके बैठा है, और उसका जवाब देने के लिए वो बच्चा जो है सही तरीके से जवाब दे सकता है। तो पता चला कि वो कैसे मुलाकात की जाए। उनको ये नहीं पता चलना चाहिए कि उनकी तरबियत के लिए कोई वहाँ पे अपॉइंट किया गया है। हैदराबाद से आए थे वो शख्स, मुसलमान थे और एथीस्ट हो गए। उनकी नेशनलिटी जो है वो इजिप्ट या कहीं की थी, वो इंडिया में किसी शादी में आए थे। तो उस शादी में उस बच्चे को, अपने बच्चे को ले के गए हम, और यूं ही मिलाया गया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, और
साथ में बैठ गए खाना खाने के लिए। और क्रिएटर आप नहीं मानते हैं, हम मानते हैं, तो ये ठीक है, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमें इंसानियत तो फैलाना है। और इंसानियत बेहतर तरीके से कैसे फैलाया जा सकता है, ये कहाँ से कौन सी किताब में पढ़ा जाएगा। तो ये बात घुमा फिरा के जब आई है तो वो शख्स, उस शख्स ने कहा कि आप पहले आदमी हो मुसलमान जो हमसे 2 घंटे तक आपने बात की है, वरना जैसे ही मुझे एथीस्ट सुनते हैं मुझसे उल्टे पुल्टे सवाल तो गुस्से का इजहार करते हैं। तो एक फिरासत और एक हिकमत अमली थी। अगर वो बच्चा एजुकेटेड ना होता, हाईली एजुकेटेड ना होता, तो शायद उनका जवाब ना दे पाता। तो इसलिए दुनियावी तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दीनी तालीम अगर नहीं रही तो वही अमल होगा जो वो एथीस्ट हो गया, तो वो गैर मुस्लिम के साथ चला गया, तो वो तमाम गलतियां हो सकती हैं। और शैतान के पास तो जैसा कि उलमा इकराम बताते हैं कि एक इंसान से शिर्क करा लेने के 700 हरबे, शायद दुरुस्त है हदीस की, अभी मुझे नींद है, मैक्सिमम हरबे हैं कि एक इंसान से कुफ्र करा ले, शिर्क करा ले, और इंसान को पता भी नहीं चलता है कि उससे शिर्क हो गया। और वो शिर्क का लेवल अलग अलग हो सकता है कि आपने कहा कि वो मैं आज ठंडा पानी पी लिया इसलिए मुझे खांसी आ रही है, तो एक बहुत मामूली लेवल का शिर्क है। लेकिन ठंडा पानी पी लेने से नहीं, वो अल्लाह के हुक्म से हुआ है। अगर कोई बीमारी भी आई है या शिफा हुई है तो अल्लाह के हुक्म से हुई है, फला डॉक्टर साहब ने नहीं सही किया मुझे। तो एक दीनी इल्म और शऊर रखने वाला इसमें अल्फाज ज़रूर जोड़ देगा कि अल्लाह की मर्ज़ी से ऐसा हुआ है और इंशाअल्लाह ताला ऐसा करेंगे। तो वो सारे प्रोटेक्शन जो हमें नॉलेज अगर रहेगी, तभी मैं समझता हूँ मैं इन सब चीज़ों से बरी हो सकता हूँ। और मैं तकरीर मेरी लंबी हो गई और मुझे जाना भी है, और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन एक जिम्मेदारी जो आपके ऊपर आयद है वो ये है कि जो आपने सीखा है उसे दूसरों तक पहुँचाना आपका अहम फर्ज है। बहुत शुक्रिया। वाफ़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।